So students, in previous slides we have talked about the size of fish, right? So now we are going to talk about the big fish, that is whale shark. Okay, now whale shark is not actually a fish, it is different from fish. Let me tell you how. Fish breathe through gills, right? But whales breathe like we do. We breathe from nose, whales also breathe from nose. Okay, now fish lays eggs, fish अंडे देती है, right? But whale gives birth to babies. whale birth देती है. और ये whale shark देखिए आप, is it looking dangerous? Yes, it's looking very dangerous. Size is also very big, right? But do you know whale shark attack नहीं करती है humans को. Okay, so these are some amazing fact about whale. Now let's talk about the size of whale. Do you know whale shark का size कितना होता है? It's about 18 meter long. 18 meter long. Do you know how much is 18 meter? Imagine कर सकते हो आप? Let me tell you, 12 childrens like you. आपके हाइट के अगर 12 चिल्ड्रंस को हम एक के ऊपर एक खड़ा कर दें ना, उतना होता है अप्रॉक्स 18 मीटर. सो हाउ लॉन्ग इज व्हेल शार्क, राइट? एंड हियर 18 मीटर इज गिवन. आपको पता है ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अगर मैं पूछूं कि 18 मीटर को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितने सेंटीमीटर की है व्हेल शार्क? सो यू रिमेंबर 1 सेंटीमीटर, 1 meter is equal to how many centimeters? 100 centimeter, right? So अगर whale shark की हम साइज देख रहे हैं कि वो 18 meters लॉन्ग है, तो हम इसको सेंटीमीटर में अगर किसी को बताना होगा तो कितना बताएंगे? 18 into 100, that is 1800 centimeter long is the whale shark. So it is approx 12 childrens like you standing on top, right? Now, so now we will talk about the weight of whale shark. Weight of whale shark is 16,000 kilograms. Now 16,000 kilograms is much more than 12 children of your age, right? So आपको ये चीज़ें बहुत important है जो याद रखनी है. That what is the weight of whale shark? That is 16,000 kilogram, right? And the size of whale is 18 meter long, or we can say 1800 centimeter long, because इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे आपको आगे अब क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. So let's see the questions. Now these questions are given in your book. Take out your pencil and I will tell you how to write the answer, right? So now let's read the first question about how many kilograms do you weigh. यहाँ पे हमारा वेट पूछा गया, राइट? तो आप अपना वेट लिखेंगे, आप सबको अपना वेट पता होगा. ओके, सो हियर आई विल राइट माई वेट, दैट इज 55 kg. Okay, write down your weight, pause the video and write down your weight. Okay, now next question is, so 12 children like you, आपके जैसे अगर 12 children put together will weigh about. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे है. इफ़ योर वेट इज 55 kg, तो आपकी तरह अगर 12 चिल्ड्रन को हम साथ में रखेंगे तो वो कितना वेट करेंगे? सो व्हाट डू वी डू जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक का ऑलरेडी दिया हुआ है एंड 12 का फिर पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं? Yes, we multiply. Okay, repeated addition है ना, 12 टाइम्स 55 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा आंसर. 12 टाइम्स प्लस करने के जगह हम क्या करेंगे? 55 kg इज माई वेट. सिमिलरली अगर 12 चिल्ड्रंस हमारी तरह एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा? टोटल वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन. सो 5 2 ज़ा 10, अगेन 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 and 5 1 ज़ा 5.
So this will be 660 kilogram. So the second question, so 12 children like you put together will weigh about 660 kilograms, right? The third question. Read the third question. About how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together? Now, अब हमें किसके बारे में पूछा है? About how much more whale shark weigh than 12 children like you put together? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? whale shark का weight. अभी हमने previous slides में देखा, yes, whale shark का weight कितना था? 16,000 किलोग्राम, राइट. अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? व्हेल शार्क कितना ज़्यादा, अबाउट हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा वेट कर रही है किससे? देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू. 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर का वेट हमने कितना निकाला है? 660 किलोग्राम. तो हम क्या करेंगे इधर पे? टेल मी. यस, यू विल सब्ट्रैक्ट. कैसे करना है? जैसे होता है ना, मेरे पास 10 टॉफ़ी है, आपके पास 4 है, तो मेरे पास आपसे कितनी ज़्यादा है? 6 ज़्यादा, तो 10 - 4 किया. तो यहाँ पे व्हेल शार्क का वेट ज़्यादा है एंड हमारा जो 12 चिल्ड्रंस का वेट है वो कम है. तो हम क्या करेंगे? व्हेल शार्क के वेट से हम 12 चिल्ड्रंस के वेट को माइनस करेंगे. ओके, दिस विल बी 10, 9, 5, राइट. सो आंसर आएगा अबाउट 15,340 किलोग्राम व्हेल शार्क 12 चिल्ड्रन से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये आंसर जो आए हैं ये किसके बेसिस पे आए? आपके, मेरे वेट के बेसिस पे आए. ओके, आपके आंसर्स डिफरेंट होंगे स्टूडेंट्स, राइट? क्यों? क्योंकि आपका वेट डिफरेंट होगा. सो यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू योर वेट. ठीक है, अब लेट्स चेक हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली इन नोटबुक. Step wise, see, the question 1 was how many kilograms do you weigh? So my answer was 55 kg, right? The second question, 12 children like you put together will weight about how much? Okay, so weight of 1 children जो कि हमारा था हमने लिखा. Then weight of 12 children पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, right? So हम क्या किए थे? 12 into 55, so we will write like this. So 12 children like me will weigh about 660 किलोग्राम. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स व्हेन यू विल सॉल्व इन नोटबुक. आपको ऐसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेज देन द 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर. व्हेल शार्क कितना ज़्यादा वेट करेगी 12 चिल्ड्रन से? सो हमने क्या देखा था? व्हेल शार्क का वेट हमें पता था, 12 चिल्ड्रन का वेट हमने यहाँ पे निकाल लिया था, तो हम उसको लिखेंगे, राइट? देन वी विल फाइंड डिफरेंस इन वेट ऑफ व्हेल शार्क एंड 12 चिल्ड्रन. तो हमारा क्या आया था? 15,340 किलोग्राम. सो द व्हेल शार्क विल वे 15,340 kilograms more than 12 children. So students, this is how you have to solve this question in your notebook. Now let's move to the next slide. Schools of fish. Now can you see fish here? ये fish कहाँ जा रही है? आपको क्या लग रहा है ये fish कहाँ जा रही है? ये fish स्कूल जा रही है. आप जाते हो स्कूल? Yes. सिमिलरली ये फिश स्कूल जा रही है. क्या फिश का भी स्कूल होता है? नो, यहाँ पे स्कूल ऑफ फिश का मतलब है फिश जो स्विम कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही हैं ग्रुप्स में. कैन यू सी? यहाँ पे फिश कैसे ट्रेवल कर रही हैं? ग्रुप्स में, राइट? डू यू नो ये फिश ग्रुप्स में क्यों ट्रेवल करती हैं? टू फील सेफ फील करने के लिए. अगर एक फिश अकेले ट्रैवल करेगी तो उसको अटैक कर सकती है दूसरे फिश, राइट? सो सेफ फील करने के लिए वो ग्रुप्स में ट्रैवल करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. जैसे जब पीपल एक साथ होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको? क्राउड. ओके, सो फ्लावर्स एक साथ होते हैं बहुत सारे तो हम उनको बोलते हैं बंच. सिमिलरली व्हेन फिश हैव अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ fish. Okay, so
School of fish means a big group of fish traveling together. Okay, and क्यों करती हैं? To feel safe from bigger fish. Okay, now एक तो ये हो गया कि फिश सेफ फील करने के लिए एक साथ ट्रेवल करेगी. अब देखते हैं फिश और क्या करती है सेफ फील करने के लिए. राइट, नाउ सी, दिस इज फिश ड्रिंकिंग सम वाटर एंड आप देख रहे हो क्या चेंजेस हो रहे हैं. फिश का साइज बढ़ रहा है. सेम फिश है लेकिन उसका साइज बढ़ रहा है. पता है क्यों? क्यों? क्योंकि फिश क्या कर सकती है? बहुत सारा पानी पी सकती है और अपने साइज को बढ़ा सकती है. क्यों? ताकि वो थोड़ी सी बड़ी दिखे और दूसरे फिश को डरा सके. ओके, सो हियर द अनदर वे कि फिश कैसे सेफ रह सकती है. टू स्कैर अवे द बिगर फिश, some small fish drink up lot of water, swell up and look big. क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? अगर अपन को किसी को डराना हो तो हम बहुत सारा पानी पी के बड़े दिखें और फिर कोई डर जाए? No, but fish can do. So this is the another way how fish can scare away the bigger fish. So look here, यहाँ पे एक पिक्चर है, देख रहे हो? ये एक छोटी सी फिश थी पर ये कैसे मोटू से हो गई है ना. So this is how fish can protect themselves. Now, which of these sea animals have you seen before? अब हम फिश की बात कर रहे थे बट सी में और भी एनिमल्स होते हैं. राइट, सो आपने इनमें से कौन से सी एनिमल्स देखे हैं? देखे होंगे बहुत से. आपको ऑक्टोपस के बारे में बताऊं एक बात. ऑक्टोपस हैव 9 ब्रेन्स. पता है आपको? ऑक्टोपस के पास 9 ब्रेन्स होते हैं. एंड द कलर ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्टोपस इज ब्लू. हमारा कलर क्या होता है ब्लड का? रेड, बट ऑक्टोपस का होता है ब्लू. सो इनमें से ये बुक का क्वेश्चन है आपको. इनमें से आपको टिक करने हैं वो सी एनिमल जो आपने पहले देखे हैं. राइट, तो मैंने तो क्रैब देखा है तो मैं क्रैब टिक करूँगी. आपने जो भी देखा है आप वो टिक कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ देयर इज़ होमवर्क. सो आज हमने अपना पार्ट 1 फिनिश किया है. हमने देखा है कैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे स्टोरी के बीच में और हमने उसको सॉल्व किया. इट वाज ऑल अबाउट फिश का शेप, साइज, ओके, वेट के. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन पेज नंबर 1. ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश. आपको ड्रॉ करना है, स्क्वायर एंड ट्राइंगल का यूज़ करके फिश बनानी है. राइट, नाउ in page number 2 the smallest fish is about 1 centimeter long. How long is the biggest fish you can imagine? आप वीडियो में पहले जाके देख सकते हैं. यहाँ पे मैम ने इमेजिन किया था 80 सेंटीमीटर. राइट, आपको खुद की इमेजिनेशन लिखनी है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मेड बाय मी. इफ़ द बिगेस्ट फिश इज 18 मीटर लॉन्ग, अगर बिग फिश 18 मीटर लॉन्ग है, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज द बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश? स्मॉलेस्ट फिश हमें पता है 1 सेंटीमीटर की है. बिग फिश यहाँ पे मैंने दिया है 18 मीटर. डोंट फॉरगेट टू चेंज द मीटर इनटू सेंटीमीटर व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, सो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको स्टेप वाइज नोटबुक में करना है. ओके, नाउ पेज नंबर 3 अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट. तो ये क्वेश्चंस आपने बुक में सॉल्व किए होंगे बट इन नोटबुक यू हैव टू सॉल्व इट थ्रू प्रॉपर मैथड जो मैंने दिखाए थे. 12 children like you put together will weigh about how many kilograms and how much more the whale shark weigh. whale shark का weight आपको पता है? yes. so उसके अकॉर्डिंग, आपके weight के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. so this was all for today. I hope students you have enjoyed the video. Stay tuned for more videos and do not forget to like, subscribe and share our channel. Bye bye.